Assalamu alaikum children. Assalamu alaikum class 10th. I hope everything is okay to your end. Today is 7th July 2020 and the time is 9 o'clock and we are starting our English class and we are going to cover up the poem that is Little Things. So let me share the screen with you. While sharing the screen, I have a question for you. What do you think about the little things? Our topic is little things. Anything comes into your mind if we talk about little things? What are little things? क्या होती हैं little things? किस चीज की बात हो रही है? Any idea? छोटी छोटी चीजें। No idea? Okay. Little things, if we go for the meaning of this word, that is little things, छोटी छोटी चीजें, मामूली चीजें। मामूली चीजें किन चीजों की बात हो रही है? क्या मैं छोटे छोटे डिवाइसेस की बात कर रही हूँ या मैं छोटी छोटी ग्रेन्स की बात कर रही हूँ या मैं छोटे छोटे पीसेस की बात कर रही हूँ? मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? लिटिल थिंग्स क्या है? लिटिल थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स, द बिहेवियर्स, द डीड्स। मैं बात कर रही हूँ फील करने, जो हम फील करते हैं या जो हम फील करवाते हैं दूसरों को। गुड डीड्स, अच्छे अमाल, अच्छी बातें जो हम अच्छे अमाल जो हम करते हैं और दूसरों को अच्छा फील करवाते हैं। समटाइम्स वाइस वर्सा भी हो जाता है। We had little things in a negative way too. So let's not talk about this in detail over here. Let's talk about the details which the poetess have given to us. So let's start the poem here first. Bismillahirrahmanirrahim. Little Things. Little Things, Beta Little Things is a poem written by a French writer, French poetess, that is Julia A. Carney. This lady is having a very deep thoughts about each and every aspect of life. इन खातून की जिंदगी के बारे में बहुत गहरी सोच है, चीजों को वो बहुत केयरफुली देखती हैं। उन्होंने सालों सोचने के बाद इस पोएम को लिखा है। उन्होंने बताया, हमें एहसास दिलाया that how little things affect good or bad in our lives, how it affects on our brains, how it affects on our thoughts, how it affects on the others' behaviors. Okay, so let's talk about the poem. So I have tried to make it more pictorial, so you will be having it in a more interactive way. So first line is little drop of water. It's a little thing. Okay, little drops of water. पानी के छोटे छोटे कतरे, ये भी एक छोटी सी चीज है ना। Little grains of sand. रेत के छोटे छोटे जर्रे, पानी के कतरे, रेत के जर्रे। And the beauteous land. और खूबसूरत जमीन। देखें, छोटे छोटे जर्रों से मिलकर जमीन बनी और छोटे छोटे कतरों से मिलकर पानी की लहरें, पानी की आबशारें, the beautiful waterfalls, the beautiful lakes, streams, ponds and lot of other things made of by this small drops of water. इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बना? The beauteous land. So the little things matters. छोटी छोटी चीजें अहमियत रखती हैं। छोटे रेत के जर्रे और पानी के छोटे कतरे मिलके क्या बना दिया? Beauteous land, एक खूबसूरत दुनिया। This is the first phrase. This is the first phrase of the poem. Little drops of water, small grains of sand, make the mighty ocean. It makes the mighty ocean. एक बहुत ताकतवर समंदर बना दिया और एक बहुत ही खूबसूरत जमीन बना दी। Check out the connectivity. Little drops of water, पानी के छोटे कतरे, make the mighty ocean, एक ताकतवर समंदर बना देते हैं।
स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे जर्रात एक खूबसूरत जमीन डेवलप कर देते हैं. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड द लिटिल मूवमेंट्स. इट्स ब्यूटियस लैंड पर जाने के बाद जब हम वहां पर टाइम स्पेंड करते हैं, सो दैट मोमेंट्स आर मोर important. That little moments, look at the those maybe the friends, maybe brother and sister, maybe cousins, but they are having good time in these you can say waves of ocean. समंदर की छोटी छोटी लहरों में ये अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो ये कहाँ से आया पानी? Small drops of water made the ocean and they are spending time over here. Small grains of sand, रेत के छोटे जरों से ये जमीन बनी, and they are spending time over here. And the little moments, जो छोटे छोटे लम्हात हैं, moments हैं, time है, इसमें भी एक ब्यूटी है. Humble though may be, आपके लिए बहुत ज्यादा आजिज़ी का भी वक्त है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी छोटी छोटी चीजों से इतनी बड़ी दुनिया अता की. ये आपके लिए झुकने का मकाम है, रुकने का मकाम है, कि अपने आप पे गुरूर नहीं लेकर आओ, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखो. जस्ट स्टे डाउन टू अर्थ and be humble in front of God that He have provided you lot of things by having a small little thing. छोटी छोटी चीजें से उसने आपको एक बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाकर दी हैं. तो अपने आप को आजिज़ी में लेकर आओ. Make the mighty ages. ये जो जमाने बन गए, एजेस जो बन गई हमारी, जैसे कि फिरौन का टाइम था, एक डिफरेंट जो लोग आए दुनिया में, डिफरेंट प्रॉफिट्स आए दुनिया में, डिफरेंट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज आई दुनिया में. हमारे सामने की अगर हम बात करते हैं अपने पिछले 70 सालों की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो कायद आज़म came up and he brought this country for us. इस तरह की जो टाइम ड्यूरेशन गुजरते हैं ना, उनको एजेस कहते हैं. एक टाइम ड्यूरेशन गुजर गया, उसको एजेस, यानी कि एक जमाना गुजर गया. कहते हैं ना एक जमाना था, हम यूं करते थे एटसेट्रा. तो इट मेक द माइटी एजेस. पानी से ओशन बना, जर्रों से जमीन बनी, वहां हमने या किसी ने टाइम गुजारा और उस बात को एजेस गुजर गए, जमाने गुजर गए. देन ऑफ इटर्निटी, एजेस ऑफ इटर्निटी, हमेशा के लिए वो जमाने आए और चले गए. होता है ना, लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसी तरह से टाइम आता है और चले जाता है. बहुत सारे लोग हैं, आते हैं दुनिया में चले जाते हैं. बहुत सारे ड्यूरेशन से आते हैं दुनिया में और चले जाते हैं. अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, आजमाइश का वक्त आता है और चला जाता है. ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं. अभी हम आते हैं आगे की तरफ. द लिटिल मोमेंट्स मेक द माइटी एजेस. यहाँ देखिए, मेरा माउस देखिए. द लिटिल मोमेंट्स मेक द माइटी एजेस. छोटी छोटी लम्हात जमाने बना देते हैं, एजेस बना देते हैं. हमें रहना चाहिए आजिज़ी के साथ हमेशा के लिए. ठीक है. डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट. कभी भी एक मुकम्मल लम्हे का इंतजार मत करो. डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट. टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट. किसी भी मुकम्मल लम्हे का इंतजार मत करो, हर लम्हे को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो. It is not that if I'm taking a class, so that will be perfect. Okay, don't expect that from me. No, don't expect this from the online class, but try to make it more perfect by putting your efforts. Okay, how can you put your efforts? By putting the questions, by asking the questions, by interrogating the things, and just try to find out the answers, so that you will be making this training a perfect session. Okay, so this is a big message in it, that don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. किसी भी सेकंड को, किसी भी मिनट को, किसी भी टाइम को मुकम्मल बनाने की कोशिश आप खुद करें.
वो खुद से मुकम्मल नहीं होगा, कोशिश आपको करनी है, ठीक है। एंड दिस कैन बी डन बाय द लिटिल थिंग। सी, टाइम इज फ्री, टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस। वक्त मुफ्त है मगर अनमोल है। इट्स प्राइसलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है। टाइम इज फ्री, सो के गुजार दो या काम करके गुजार दो। होता है ना, जो लोग सोते रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। इस वक्त आप ट्रेनिंग ले रहे हो एंड यू आर अर्निंग इट। आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप नॉलेज अर्न कर रहे हो, यू आर अर्निंग द नॉलेज, बट दोज हु आर स्लीपिंग दे आर एक्चुअली वेस्टिंग द टाइम। टाइम इज फ्री फॉर यू, टाइम इज फ्री फॉर देम हु आर स्लीपिंग, टाइम इज फ्री फॉर एवरीवन बट इट्स प्राइसलेस। अनमोल है ये, इसकी कीमत नहीं लगा सकते आप। इसको अवेल करो, just try to earn with it. You can't own it. ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, you can't own it, but you can use it. That is the point. This time is not anyone's property, but you can use this time. Fine? You can't keep it. आप इसे रोक नहीं सकते, आप इसे छुपा नहीं सकते, लेकिन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो सोने में या काम करने में या कमाने में या सीखने में या जाया करने, ये आपके ऊपर, ठीक है। Once you have lost it, you can never get it back. अगर आपने इसे खो दिया तो ये कभी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। Okay, time is free, it's priceless, you can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. Right? So the little errors. छोटी चीजें तो हैं, लिटिल थिंग्स तो हैं, लेकिन छोटी गलतियां भी हैं। लिटिल एरर्स, छोटी गलतियां, क्या नुकसान होता है उनका? आपके अंदर से आपकी रूह को दूर ले जाती हैं। आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना आपके अंदर से, वो आपकी रूह को, आपकी सोल को दूर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू, नेकी के रास्ते से दूर ले जाती है। जो आपकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो आपको नेकी के रास्ते से दूर ले जाती हैं और into sin to stray, आपको गुमराह कर देती हैं गुनाह की तरफ, आपको गुमराह कर देती हैं। फिर आप, मतलब आपकी मैं बात नहीं कर रही, इन जनरल कह रही हूँ, ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, जो रेगुलरली हम बड़ी आसानी से झूठ बोल जाते हैं, ये कह दो कि मैं नहीं हूँ या फोन पे मैं नहीं आ रहा, एटसेट्रा, इस तरह की बातें हम कर देते हैं, कह देते हैं। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, ये हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। फिर हमें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, वी डोंट फील दैट इट्स बैड, इट मेक अस स्ट्रे, ये हमें गुमराह कर देती है, हमें रास्ते से हटा देती है। गुमराह मतलब जिसका रास्ता गुम हो जाता है, ये हमें रास्ते से हटा देती हैं और सिंस की तरफ ले जाती हैं। फिर हमें झूठ बोलने में कोई बुराई नजर नहीं आती, किसी के मजाक में कोई चीज उठा ली तो वी पिक द थिंग्स जस्ट लाइक दैट कि जी कोई बात नहीं, इसको तंग करते हैं, मजा आएगा। फिर क्या होता है, हैबिट डेवलप हो जाती है, हैबिट डेवलप हो जाती है, चोरी की तरफ आ जाती है। चोरी की तरफ वो जो लज्जत मिल रही थी, जो खुशी मिल रही थी सामने वाले से कि वो देखो तंग होगा, उसकी चीजें उठा लेते हैं, वो चोरी में कन्वर्ट होगी। फिर आपको ये फील नहीं होता कि आपने जो चीजें उठाने में जो आप शरारतें करते थे, गलतियां करते थे, वो अब चोरी की बुरी आदत में तब्दील हो चुकी। फिर आपको वो फील नहीं होता क्योंकि आपको सही और गलत की पहचान खत्म हो गई, क्योंकि आप गुमराह हो गए। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, ये आपको सीधे रास्ते से हटा देती हैं। छोटी गलतियां, कीप इट इन योर माइंड। जो प्रॉब्लम्स हैं वो छोटी छोटी चीजों से ही शुरू होते हैं। So the little errors leads the soul away. छोटी छोटी गलतियां आपकी रूह को दूर ले जाती हैं from the path of virtue, नेकी के रास्तों से, into sin to stray, आपको गुमराह कर देती हैं और गुनाहों की तरफ ले जाती हैं। Little deeds of kindness. If you can see this slide, यहाँ देखें, एक ये ओल्ड एज खातून है, इसको फूल दे रहा है, दे रहा है, दे रही है कोई लेडी, इसको फूल दे रही। ये एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे के जूते
शू लेसेस शायद बांध रहा है उसके, नहीं उसका जूता ठीक कर रहा है. He is trying to make it wear in a proper way. And then in the third picture, a young boy is opening the door for an old man. Can you do this? These are the little things, little deeds of kindness. ये आपके अच्छे काम करने का एक तरीका है. ये आपका एक बिहेवियर है सामने वाले के लिए कि अगर कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, आप उसके लिए फ्लावर्स ले जाते हैं, तो ये एक आपका अपना दिल की नरमी आप उनको दिखाते हैं कि मैं आपके लिए बहुत वरीड हूँ. एक ओल्ड मैन चला आ रहा है, उसको आपने दरवाजा खोल के अंदर बुला लिया. दैट मीन्स दैट यू आर शोइंग द केयर फॉर हिम. सिमिलरली आप एक बच्चे का जूता ठीक कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसको अच्छा फील होगा. ठीक है, ओके. लिटिल वर्ड्स ऑफ लव. 1 minute. हाँ, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, जो हम बात करते हैं उसमें अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करना, ये भी एक अच्छा काइंड एक्ट होता है. ठीक है. मेक द अर्थ ईडन, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना, अपने अल्फाजों में प्यार लेकर आना, अच्छाई और खूबसूरती लेकर आना. टू मेक द अर्थ ईडन, आपकी दुनिया को जन्नत बना देता है, जन्नत के बागों में से एक बना देता है. क्यों? अच्छे अल्फाज जो किसी की भी थॉट चेंज कर देते हैं. Once you change the thought and then the other man जब सब अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा फील होगा. पॉजिटिव एनर्जीज डेवलप होंगी. जब हर चीज पॉजिटिव होगी, हर चीज अच्छे से चलेगी, तो क्या होगा, आपकी दुनिया जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी. सी द लिटिल थिंग्स इफेक्ट, छोटी छोटी चीजें कितना अच्छा असर डालती हैं जिंदगी. ओके. लाइक द हेवन अबव, आपको लगेगा कि जन्नत जो है वो करीब ही कहीं है. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक द अर्थ ईडन. लिटिल वर्ड्स ऑफ लव लाइक द हेवन अबव. अच्छे काम आपकी जिंदगी को जन्नत बना देते हैं, आपको जन्नत जैसा फील करवाते हैं. एवरी गुड डीड इज चैरिटी. हर अच्छा काम, हर अच्छा अमल एक चैरिटी है. किसी के लिए बोले गए अच्छे अल्फाज, किसी के लिए किया गया अच्छा काम, किसी के लिए पैदा की गई अच्छी सी आसानी, किसी के लिए छोटी सी हेल्प, ये सब अच्छे अमाल जो होते हैं ना, ये सदका होते हैं, एक चैरिटी होती है, खैरात होती है. ये जरूर, और खैरात जो है ना वो पैसों अब लेकर तो कोई चीज नहीं देते ना, खैरात तो आप दे देते हैं कि भाई ये तुम मेरी तरफ से रख लो, फाइन. मुस्कुरा कर देखना भी चैरिटी है. ठीक है, सदका है. किसी के लिए आसानियां पैदा करना. आसानियां पैदा करना क्या होता है कि जैसे कि लाइक सपोज के मुझे किसी ने कहा कि मैम मेरा ये काम है तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर दें. तो मैंने कहा कि यार बेटा मैं तो कल स्कूल नहीं आ रही हूँ, बट फाइन ठीक है, आपके लिए मैं कल स्कूल आ जाऊंगी तो आप भी आ जाना, फिर हम मिलके इस मसले का कोई हल निकालें. तो आई हैव गिवन हर a way where she can find out the path to solve the issue. मैंने उसको एक रास्ता दिखा दिया कि हम दोनों मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे. रास्ता जब दिखाया है उस रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल पे मिल जाएगी. ठीक है. दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना भी एक चैरिटी है. मुस्कुराकर देखना एक चैरिटी है. जैसे कि अभी आप लोगों का 1 साल खत्म हो गया, पिछले साल आप लोग अपनी बुक्स किसी को दे देते हैं, तो एक छोटी सी हेल्प होगी उनके लिए जिनको कि आप बुक्स डोनेट करेंगे. ठीक है. इसी तरह से अगर आप रास्ते पे कहीं जा रहे हैं, किसी बूढ़े शख्स को देखें तो उसको सड़क पार करवा दीजिए. अगर कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है उसको रास्ता बता दीजिए. अगर नियर बाय कहीं जा रहे हैं एंड ऑन द वे किसी और को भी अपनी गाड़ी में राइड दे सकते हैं तो उसको लिफ्ट देके वहां ड्रॉप कर दीजिए, वो भी एक अच्छी हेल्प है. किसी से अच्छी तरह से बात कर लीजिए. अगर आप खाना खा रहे हैं तो किसी के साथ, किसी को अपने साथ शेयर करवा लीजिए जहाँ जरूरत पड़ती है. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपको आपकी जिंदगी को आसान बनाती हैं. ठीक है. अब इसके अलावा और छोटी कौन सी बात है. नंबर 1,
नमाज हम सब पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला के लिए ज्यादा ब्लेसिंग होगी हमारी तरफ। जनाजे में जाना अफजल है, जाना चाहिए। सिलाई रहमी करना, जो आपसे जो नीचे जो लोग हैं, जो छोटे हैं, उनका ख्याल रखना, उनके साथ रहम का सलूक करना, अल्लाह ताला की तारीफ करना, दूसरों की मदद करना, नमाज कायम करना, अल्लाह का जिक्र करना, कुरान पाक की तिलावत करना, हर किसी के लिए दुआ करना, इशराक पढ़ना। इशराक इज द 10 बजे वाली नमाज एक होती है, उसको इशराक कहते हैं, सुबह 10 बजे पढ़ी जाती है। अजान का जवाब देना। अजान का जवाब कैसे देते हैं? जब नमाज के लिए बुलाया जाता है, अजान दी जाती है, तो हम फौरन क्या करते हैं? वुजू करते हैं और नमाज कायम करने के लिए चल पड़ते हैं, चाहे वो मस्जिद में हो चाहे वो घर पे हो। तो ये रिप्लाई होता है। इस्तग़फ़ार करना, मस्जिद जाना अपना इल्म बढ़ाने के लिए और लोगों के लिए दुआ करना। ये सब कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि छोटी छोटी चीजें जिनके जरिए हम दुनिया में ही जन्नत बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम शायद हम सब करते भी होंगे लेकिन हमें फील नहीं होगा। लेकिन कोशिश करें, just try to find out a thing which can feel you good and which can help others। को ऐसी चीजें करने की कोशिश करें जिससे आपको भी अच्छा फील हो और दूसरों की हेल्प भी हो। जैसे कि किसी बच्चे को मैं पढ़ाना चाह रही हूँ कि मैं पढ़ा दूँ किसी बच्चे को। अब एक बच्चा मेरे पास आता है और आके कहता है कि मिस मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता आपकी ट्यूशन फी, तो इस तरह से होगा। तो मैं उसको ऑफर करूंगी, ठीक है बेटा कोई इशू नहीं है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते इस टाइम पे मेरे पास आ जाना, तो आई विल गाइड। मैंने उसको पढ़ा दिया क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो नॉलेज कैन बी डिलीवर्ड फ्री। बच्चे को बुलाया, उसको मैंने पढ़ा दिया। वंस ही विल बी लिटरेट, एक बार वो सीख लेगा तो फिर वो 10 बच्चों को और पढ़ा सकता है। So that's a very small thing, a small deed which can help anybody in the world. Spread the salam, सलाम को फैलाइए। Feed and perform salah, दूसरों को खाना खिलाइए और नमाज कायम कीजिए। While people are sleeping, you will enter paradise with the greetings of salam। जिस वक्त लोग सो रहे होते हैं, फजर की नमाज के वक्त या कुछ लोग इशा के बाद सो जाते हैं, तो उस वक्त तुम जन्नत में जाओगे। जिस वक्त लोग सो रहे हो जन्नत में जाओगे कैसे? सलाम को फैलाओगे। अगर अस्सलाम वालेकुम कहने की आदत डालें, दूसरों को कोशिश करें कि जो आपके नियर बाय है उनमें से कोई भूखा ना रहे, कोशिश करें उसको खाना खिलाने की, और अल्लाह ताला के आगे सजदा करें, अल्लाह ताला के आगे झुक जाए। वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको उस वक्त मदद करेंगी जब लोग सो रहे होते हैं और दुनिया आपके लिए जन्नत है। ठीक है, A drop of good deed can become an ocean if you do it constantly। एक अच्छे अमाल का, अच्छे अल्फाजों का, अच्छी बातों का, अच्छे कामों का एक एक कतरा अगर आप रोज डालते जाएंगे तो कभी ना कभी ओशन जरूर बने। ठीक है, अच्छे अमाल जो होते हैं ना वो कतरा कतरा करके डाले जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ द रिवॉर्ड। उसका कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट मत कीजिएगा आप, तो फिर वो आपका अच्छी नेकी नहीं रहेगी। फिर वो आप A drop of good deed, अच्छे अमाल कतरा कतरा करके एक ना एक दिन समंदर जरूर बना। So do it, आप ये करते जाइए। ठीक है, This is all for the first session. Okay children, do you understand the poem Little Things? Samira, do you understand the poem Little Things? Yes, ma'am. I hope it's all clear. Yes, ma'am. Is it eye opening? Yes. आंखें खुली आपकी? सबकी आंखें खुली? Yes, ma'am. Eye opening? अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, जस्ट मेक अ प्रॉमिस विद योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू डू गुड डीड्स। कोशिश कीजिए अच्छे अमाल करने की बाय डूइंग द लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों से
अपनी और दूसरों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश की। ठीक है, right? I hope it's all clear. So I am closing my first session. This is part number 1 for this session. So I'm closing it up. After 5 minutes, I will be sending you the next link for the exercise. Okay? Thank you very much. Okay, ma'am. For 5 minutes.